student. Today we discuss in solid state topic new point in non-stoichiometric defect. So non-stoichiometric defect we study in last lecture means cation and anion ratio. So crystal of cation and anion ratio will be discussed. For example, this is cation and this is anion. So cation ratio is 100 but anion exchange 99. So this is ratio will be discussed. But in some example, cation ratio is 99 and anion ratio is 100. So there also be in ratio different due to some effect. So this is called as non-stoichiometric defect. So this is called as non-stoichiometric defect. Next, we see in non-stoichiometric defect a different type. Non-stoichiometric defect, first is metal excess defect and second one is metal deficiency defect. So first we discuss metal excess defect. So metal excess defect again can be divided in two types. Again this defect can be divided in two types. So first by anion vacancy. So first one is anion vacancy. And second one is interstitial site of metal excess defect. Interstitial site of metal excess defect and second one is by anion vacancy. Means metal excess. Metal means cation. Metal easily lose electron. Metal means to lose electron to acquire a positive charge means to form a cation. So excess of metal in crystal structure. Excess of metal in crystal structure. So this is called as metal excess defect. This metal excess defect can be classified two types, anion vacancy and interstitial site. Means interstitial metal excess defect. Interstitial metal excess defect. And second one is anion vacancy metal excess defect. Anion vacancy metal excess defect. So we start a first type anion vacancy defect. We start a first type anion vacancy defect. So in this metal excess defect type, there is a one important case. Means anion vacancy means यहाँ पे हमने first ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर दी. So anion. तो यहाँ पे मेटल एक्सेस, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी टेक अ cation and take a second we take a anion. So Na plus and Cl minus to form a ionic compound NaCl. To form ionic compound NaCl. And when Na acquire a positive charge, Na plus one electron removed. In Na means sodium atom, one electron removed from the sodium ion. From the sodium ion. So to get so in sodium atom, one electron lose to get a positive charge, to acquire a positive charge and one electron removed from sodium atom. Means sodium electronic configuration 281. Sodium atom atomic number 11. So यहाँ पे +1 चार्ज, प्लस चार्ज कब आता है? वन इलेक्ट्रॉन लेस करते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए इसके कितना है चार्ज? 28. ओनली 28. एंड Cl माइनस टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इट गेन वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये था हमारा 11th स्टैंडर्ड का में जो पढ़े हाउ टू फॉर्म अ कैटायन एंड एनायन. तो ये कैटायन फॉर्मेशन होगा और Cl का एनायन फॉर्मेशन हो सकता है. तो यहाँ पे एनायन वैकेंसी, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंसीडर कर दिया ये Na एटम और सेकंड है Cl एटम, Cl माइनस एनायन एटम, फिर कैटायन, फिर से एनायन. सो अगेन दिस रीअरेंजमेंट लाइक दिस. यहाँ पे फर्स्ट Cl माइनस, सेकंड Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस. नेक्स्ट अगेन Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस. नेक्स्ट Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस. तो यहाँ पे ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर
ये हमारा क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहां से हमने सोडियम वेपर पास कर, Na वेपर पास कर दिया, यहां से क्रिस्टल स्ट्रक्चर के यहां से हमने क्या कर दिया, सोडियम वेपर पास कर दिया। तो सोडियम वेपर पास करने से यहाँ पे क्या हो गया, Na ने क्या कर दिया, उसके 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na ने उसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो हमारा सोडियम एटम में मीन्स यहाँ पे 281 कॉन्फ़िगरेशन था, तो यहाँ पे +1 कब आ गया, Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो यहाँ पे ये +1 जा। तो इस Na प्लस ने इस क्लोरीन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब बाहर। तो ये क्या होगा, Na प्लस और ये Cl माइनस, तो ये कंबाइन होके क्या फॉर्मेशन हो गया, NaCl फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे ये Na वेपर मतलब सोडियम वेपर पास करने से 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट भी हो गया, तो यहाँ से Cl रिमूव हो गया। लेकिन यहाँ पे कौन सा क्या ऐड हो गया, जो Na का 1 इलेक्ट्रॉन ये जो लूज था, उसने तो सोडियम एटम ने +1 चार्ज गेन कर लिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और ये Na प्लस कंबाइन हो गया, और ये Cl जो हमने रिमूव कर दिया वो यहाँ पे है। तो ये कंबाइन फॉर्मेशन क्या हो गया, NaCl आयोनिक कंपाउंड। और यहाँ पे ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा आयोनिक कंपाउंड, ये Na प्लस जो सोडियम वेपर से यहाँ पे Na जो पास हो गया सोडियम वेपर के फॉर्मेशन में, वो यहाँ पे, और जो ये Cl रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे NaCl कंपाउंड, और उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया था वो यहाँ पे क्रिस्टल साइड में ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, एनायन वैकेंसी, मतलब क्लोरीन रिमूव हो गया। तो सिंपली एनायन मतलब क्लोरीन है, तो एनायन ने क्या कर दिया, उसको मतलब उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गई, एक एनायन कम हो गया। तो यहाँ पे हम देख लेंगे Na प्लस एंड Cl माइनस रेशो। तो इसका रेशो क्या है, सोडियम और Cl माइनस का रेशो, सोडियम एटम कितने इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये Na प्लस रेशो S2 Cl माइनस रेशो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले रेशो कितना था, Na प्लस का 8 और Cl के 1 2 3 4 5 6 7। और जो है ये मैंने फर्स्ट था ना Cl के मतलब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, तो पहले फर्स्ट बिफोर ये स्ट्रक्चर क्या था, बिफोर डिफेक्ट क्रिएट होने से पहले इसका रेशो Na का 8 एटम और Cl के 8 एटम, और आफ्टर डिफेक्ट द रेशो विल बी चेंज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन कौन सा, Na प्लस S2 Cl माइनस एनायन। तो इसका रेशो क्या हो गया, 8 जितने सोडियम एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 का 8 रहेगा, लेकिन 1 रिमूव एनायन एटम फ्रॉम अ क्रिस्टल लैटिस, तो ये कितना हो गया 7। तो यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ऑब्वियसली। एक तो एनायन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी रिमूव हो गई। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में मतलब एनायन वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी रहती है क्रिस्टल लैटिस वो तो सेम हो गई। क्यों सेम हो गई, इसने तो मतलब Cl माइनस को रिमूव कर दिया सोडियम वेपर पास होने के बाद, सोडियम वेपर पास होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस रिमूव हो गया, लेकिन वो रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन माइनस वो तो ऐड हो गया, वो इलेक्ट्रॉन माइनस। तो प्लस चार्ज कितने यहाँ पे, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ प्लस चार्ज यहाँ पे इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, प्लस चार्ज कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्लस चार्ज कितने 8, और माइनस चार्ज मैंने एक Cl रिमूव कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो डिस्प्लेस हो गया ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो निगेटिव चार्ज कितना है, निगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा 8। तो यहाँ पे इसकी वजह से मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कितने 8 और निगेटिव चार्ज पार्टिकल कितने 8 ही है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन ही रह गई, एनायन
वैकेंसी में मेन प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन, ये हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या हो गई, सेम हो गई। प्लस का चार्ज कितना 8 और माइनस का चार्ज कितना 8 है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आफ्टर द डिफेक्ट यहाँ पे मेटल एक्सेस हो गया, मतलब एनायन रिमूव कर दिया, और कैटायन मतलब मेटल होते तो मेटल क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो ये हमारा टाइप कौन सा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एनायन की वजह से मेटल तो एक्सेस होगा, तो ये हमारा टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी यहाँ पे सोडियम वेपर पास होने के बाद क्लोरीन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे रिप्लेस तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मतलब वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ किसका हो गया, एफ सेंटर, जनरेशन किसका हो गया, एफ सेंटर। So due to this F center, this compound will be show in a color formation. This crystal in NaCl means ionic compound. तो ये ड्यू टू F center, यहाँ पे क्या हो गई, एनायन की वैकेंसी, तो यहाँ पे F center क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, ये F center क्रिएट हो गया। तो ड्यू टू F center a compound show a color compound show a color compound due to F center compound show color compound means जनरली NaCl मतलब हमारा जो कॉमन सॉल्ट जो हम डेली यूज में यूज करते हैं उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। लेकिन सोडियम वेपर पास होने के बाद इसका कलर क्या होता है, सोडियम का कलर क्या पास होता है, फर्स्ट NaCl का कलर व्हाइट होता है। और यहाँ पे ड्यू टू F center generation, due to F center generation the compound show must be color formation। तो NaCl का कलर कौन सा होता है, येलो कलर। NaCl कंपाउंड कौन सा कलर शो करता है, येलो कलर। सो ड्यू टू F center जनरेशन द कंपाउंड शो इन कलर फॉर्मेशन। तो NaCl का फर्स्ट कलर क्या था, रहता व्हाइट, लेकिन ड्यू टू F center NaCl बिकम अ येलो कलर। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर दी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंट है। तो यहाँ पे मैं ये सेकेंड टाइप रफ कर देती हूँ, इसे हमें बाद में स्टडी कर देना है। और यहाँ पे मैं ये ठीक से लिख देती हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू anion vacancy, फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू anion vacancy, metal excess defect, so due to anion vacancy metal excess defect a physical property shows means यहाँ पे हमने ये NS वेपर पूरे इसमें पास कर दिए, तो HCl माइनस रिमूव कर दिया, मतलब एनायन रिमूव कर दिया। लेकिन उसने सोडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में एज इट इज छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो गई, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी means this anion vacancy, due to anion vacancy metal excess defect the physical property shows high electrical conductivity, means electrical conductivity at high rate. Second properties due to F center this compound shows, due to F center compound shows color formation means color compound. So NaCl shows
yellow compound after the anion vacancy defect. After the anion vacancy defect. So next ionic compound LiCl, same, this due to this defect, due to anion vacancy defect. NaCl shows yellow color. Second, LiCl means lithium chloride. LiCl means lithium chloride shows pink color. Lithium chloride shows pink color. And third one is KCl. So KCl shows a violet color. KCl shows a violet color. Means ये क्वेश्चन एंट्रेंस या बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं. ड्यू टू एफ सेंटर जनरेशन अ कंपाउंड शोज कलर कंपाउंड. तो NaCl हमें पता है, तो NaCl व्हाइट का येलो होगा, तो LiCl का क्या होगा, पिंक कलर. और KCl पोटेशियम क्लोराइड का कौन सा कलर जनरेट होगा, ड्यू टू एफ सेंटर, यहाँ पे वॉलेट कलर. और नेक्स्ट हमारा थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी विल बी डिक्रीज. डेंसिटी तो कम हो गई ना, इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है, लेकिन Cl एनएन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज. डेंसिटी डिक्रीज. एंड फोर्थ, ड्यू टू anion vacancy metal excess defect, this shows paramagnetic properties, paramagnetic behavior, paramagnetic behavior at high rate. Paramagnetic behavior at high. So what is mean by paramagnetic? Paramagnetic means unpair electron. तो यहाँ पे due to free electron, due to free electron, तो free electron की वजह से यहाँ पे हमारे Na कैटायन का रेशियो कितना था, 8:8, लेकिन यहाँ पे 1 anion रिमूव हो गया, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई इफेक्ट होने वाला है क्या, यहाँ पे तो अट्रैक्शन जनरेट ही होने वाला है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो definition of paramagnetic, the substance with unpaired electron are weakly attracted by magnetic field. means यहाँ पे जब ये क्लोरीन ऐड था, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे 1 anion रिमूव हो गया, तो यहाँ पे अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो कम, थोड़ी सी तो कम हो गई ना, एक anion की वैकेंसी हो गई, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, कम होगा ना. तो यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शोज कर रहा है, मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एट हाई रेट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. तो ये था हमारा एनायन वैकेंसी कंसेप्ट. तो ये समझ में आया एनायन वैकेंसी क्यों होता है, मतलब अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं Na+Cl-. तो Na+ का फॉर्म होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हम लूज करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है. लेकिन फर्स्ट बिफोर द डिफेक्ट, मतलब यहाँ पे Na वेपर पास करने के पहले इसका रेशियो कितना था, Na+8:8 था. तो ये स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है, लेकिन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, तो कैटायन एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब, मींस विल बी चेंज. तो यहाँ पे हमने Na वेपर पास कर दिया, तो ड्यू टू Na वेपर पास इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर और anion विल बी रिमूव इन क्रिस्टल लैटिस, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, क्रिस्टल लैटिस में छोड़ दिया. तो यहाँ पे आफ्टर द डिफेक्ट क्या इफेक्ट होगा, Na मेटल एक्सेस, मतलब Na मतलब कैटायन है, तो कैटायन का अमाउंट मतलब हाई हो गया, तो मेटल एक्सेस हो गया, लेकिन Cl क्या हो गया, 7. लेकिन फिर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हो गई, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तो रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हाई और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बढ़ गई ना. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, maintain due to same positive and negative charge, due to same positive and negative charge. तो यहाँ पे in crystal structure positive charge will be 8 and negative charge will be 8. अभी यहाँ पे Cl रिमूव हो गया, लेकिन F सेंटर जनरेट होगा, तो F सेंटर की वजह से कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब कलर फॉर्मेशन, NaCl का कलर कैसे
येलो होगा, LiCl का पिंक और KCl का वॉलेट होगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई और डेंसिटी, एक आयन रिमूव होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये था हमारा एनायन वैकेंसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो सेकेंड टाइप इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, interstitial site. Interstitial site means interstitial cation, means metal excess due to interstitial cation. So a neutral atom, तो इसमें भी फिर से दो टाइप डिवाइड, a neutral atom और an extra positive ion occupy interstitial position. Interstitial means जो खाली स्पेस होती है उसमें वो एटम ऐड होते हैं, तो यहाँ पे इंटरस्टेशियल पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स, तो Zn पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, न्यूट्रल एटम, ये मतलब फ्री एटम है, तो इसे ही हम न्यूट्रल एटम, मतलब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है या नेगेटिव चार्ज लिखा है, कोई भी चार्ज नहीं है, ये फ्री एटम, मतलब इसे ही क्या कहते हैं, न्यूट्रल एटम, इसे ही क्या कहते हैं, न्यूट्रल एटम। अभी इस न्यूट्रल एटम मींस हम फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिंक ऑक्साइड, फर्स्ट वी कंसीडर अ एग्जांपल जिंक ऑक्साइड। सो दिस मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, तो यहाँ पे कैटायन कौन है, मतलब मेटल कौन है, ये कैटायन फॉर्म का होगा जिंक, और ऑक्सीजन जो निगेटिव होता है, तो ये क्या होगा, एनायन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मेटल एक्सेस, तो यहाँ पे किसका एक्सेस होगा, जिंक एटम का, तो जिंक फर्स्ट कोई भी चार्ज नहीं, तो न्यूट्रल एटम, तो यहाँ पे मैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे Zn2+, मतलब जिंक पे कौन सा चार्ज है, +2, और ऑक्सीजन पे कौन सा है, -2, तो +2 और -2 गेट कैंसिल आउट ईच अदर, और यहाँ पे क्या होता है, मतलब फ्री एटम होता है ना, तो यहाँ पे ये कैंसिल चार्ज रिमूव हो जाता है, तो हम सिंपली ये स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड, तो Zn2+, जिंक 2+, और यहाँ पे O-, अगेन जिंक +2, O-2, again O-2, zinc +2, O-2, zinc +2, next again zinc +2, O-2, O-2, zinc +2. तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज लाइक सेम जिंक और जिंक 2+, और ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, -, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें मेटल एक्सेस कर देना है, तो यहाँ पे जिंक न्यूट्रल एटम, जिंक कौन सा एटम है, न्यूट्रल एटम, तो जिंक न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ पे जिंक सेम एज इट इज ऐड होगा, न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ पे ये जिंक ऐड हो गया, इन जो मतलब खाली स्पेस था तो वहां पे मेटल ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। और जो सेकेंड टाइप है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक ऑक्साइड shows Zn2+ charge, Zn+2 charge. So zinc oxide heated, it decomposes to give Zn2+ plus O2. So यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं हाफ रेशियो रख देती हूँ, हाफ नंबर, और यहाँ पे 2+ चार्ज कब आता है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई Zn2+ plus 1/2 O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, न्यूट्रल एटम ऐड होगा। अभी यहाँ पे ये सेकेंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो सेम Zn+2 O-2 Zn+2, यहाँ पे O-2, नेक्स्ट O-2 Zn+2 O-2 Zn। तो ये मैंने अपोजिटली चार्ज एटम अरेंज कर दिया इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
यहाँ पे ऐसे ही, मतलब एग्जाम में ऐसे ही कुछ नहीं पूछा जा सकता, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल एटम कैसे ऐड हो गया, नहीं तो यहाँ पे ये जो Zn2+ मतलब जो कैटायन फॉर्मेशन वो कैसे ऐड हो गया, ये रीजन नहीं पूछ सकते, मतलब कैटायन प्लस ऐड हो गया उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी इसमें रिप्लेस हो गए, तो यहाँ पे इसका रीजन पूछने नहीं वाले एग्जाम में, सिर्फ ये पूछने वाले हैं कि यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट, मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन हो गया, तो ये क्यों हो गए ये पूछने वाले, मतलब कैसे ऐड हो गए वो नहीं, मतलब हम कोई भी रिएक्शन केमिकल प्रैक्टिकल में, मतलब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे मतलब व्हाइट कलर पीपीटी फॉर्मेशन, लेकिन हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल मतलब जल्दी से कर देते हैं, तो यहाँ पे मतलब एक्यूरेटली पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे ये जिंक न्यूट्रल एटम रिप्लेस होगा इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी क्या होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा, +2 चार्ज है ना, तो यहाँ पे ठीक से पीपीटी फॉर्मेशन नहीं तो ठीक से इनकम्प्लीट रिएक्शन होने की वजह से भी यहाँ पे ऐड हो सकते, तो ये रीजन नहीं पूछ सकते कि क्यों ऐड हो गया, उसका रीजन क्या है, लेकिन ये डिफेक्ट क्यों क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड डिकम्पोजेस व्हेन वी हीट इट, सो इट डिकम्पोजेस, दैट गिव्स जिंक कैटायन फॉर्मेशन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, और यहाँ पे 1 मतलब रिएक्शन डिकम्पोज हो गया तो ऑक्सीजन भी सेपरेट हो गया, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गए, तो यहाँ पे इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये जिंक 2+, तो यहाँ पे ऐड हो गए Zn2+, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी हो गया ना, तो वो भी मतलब यहाँ पे मैंने कंसिडर कर दिया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब हम जो जिंक कैटायन फॉर्मेशन वो इंटरस्टिशियल साइड में ऐड करते हैं, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज इट इज होगा। अभी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सो फर्स्ट इन नॉन स्टोइचियोमेट्री फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट एनायन वैकेंसी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो फर्स्ट क्या होगी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल neutrality first is maintained in this defect, maintained in defect, so first this is means यहाँ पे जिंक के 8 हो गए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक ऐड हो गया तो इसके 9 हो गए, लेकिन प्लस और माइनस 4, तो यहाँ पे ये 2+ ऐड हो गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी सेम है ना, मतलब यहाँ पे मैं रेशियो लिख देती हूँ जिंक और ऑक्सीजन कितना रेशियो 1 2 3 4 5 6 7 8, जिंक का कितने रेशियो 8 है, मतलब ये जिंक 8 और ऑक्सीजन भी कितने हो गए 8 हो गए, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटल हमने ऐड कर दिया, तो उसके बाद में मतलब ये बिफोर डिफेक्ट, और यहाँ पे आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मैंने ऐड कर दिया मेटल, तो यहाँ पे कितने हो गए 9 हो गए, उतने ही क्या हो गए निगेटिव चार्ज हो गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा ऐड होने के बाद भी क्या होगा, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज उतने ही क्या हो गए निगेटिव चार्ज हो गए, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे 2+ चार्ज था, यहाँ पे कितना 2+ चार्ज, तो वो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में छोड़ दिए, तो यहाँ पे आफ्टर भी क्या होगा रेशियो सेम होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का रेशियो क्या होगा सेम होगा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मींस कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई इन दिस डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is high, so this is first property, electrical conductivity is high. Second, it shows paramagnetic behavior due to free electron, it shows paramagnetic behavior due to free electron,
ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कलर फॉर्म होगा। क्या होगा, कलर फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो NaCl का कौन सा कलर होगा, यहाँ पे येलो होगा। तो एनएन वैकेंसी में F सेंटर जनरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर जनरेट होगा। तो कौन सा येलो होगा, मतलब NaCl होगा। व्हाइट का क्या होगा, येलो कलर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये हमारा मतलब न्यूट्रल एटम से एक क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन हो रहा है। और जो कैटायन से, तो Zn2+ मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होने के बाद वो 2+ चार्ज गेन करेगा। तो यहाँ पे 2+ मतलब जिंक एटम कैटायन मैंने ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ऐड कर दिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो सेम ही होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हाई होगी। और कलर फॉर्मेशन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो NaCl व्हाइट का क्या होगा, येलो फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट के हमने टोटल स्टडी कर दी। तो फर्स्ट टाइप था एनएन वैकेंसी मतलब Cl, सोडियम पास करने के बाद Cl रिमूव कर देता है, तो ये एनएन वैकेंसी। और सेकेंड वन हमने इंटरस्टिशियल कैटायन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये पढ़ लिया। So I hope you understand all this concept. If you have any doubt or confusion, so ask me. Thank you, student.